پلیز اس ویڈیو کو آپ لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پہ کا بٹن دبانا بالکل مت بھولیے، یہ بہت آوشک ہے۔ اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹس جو ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ دھنیہ واد۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے۔ کو جہاد کے نام پر قربانی دینے کو اکسایا جاتا ہے، ان کی ٹریننگ گفا میں ہوتی ہے، وہاں ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جیسے وہ کوئی دوسری دنیا میں ہو۔ گفا میں لڑکوں کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی جاتی ہے، پانی کی آواز آتی ہے اور لڑکیاں لڑکوں کو چھو چھو کر بھاگ جاتی ہیں۔ اس طرح جہادیوں کے دل و دماغ میں لڑکیاں بھر دی جاتی ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ جنت میں بھی ایسی ہی حوریں ملیں گی۔ ان لوگوں کو ایک کیو میں لے جاتے ہیں اور اس کیو میں پانی کا آواز آتا ہے، بلائنڈ فولڈ کیا جاتا ہے، پانی کا آواز آتا ہے اور جیسے وہ اس کیو میں بڑا کول کیو ہوتا ہے اور جیسے وہ جاتے ہیں تو لوگ ان کو چھوتے ہیں۔ کہا گیا تھا کہ وہ لڑکیوں کے ہاتھیں ان کو چھوتے ہیں، ان کے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ نکلتے تھے لوگوں نے ان کو کہہ رہا تھا یہ تھے حوری، یہ تھا کیو، یہ وہ ہے جو آپ کو جب آپ مریں گے تو یہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا، مانے یہ سلوک ہوگا in the next world۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں، آپ کو اچھا لگا اور یہ چاہتے ہیں تو وہ کریں جو ہمارے آپ کو کیا۔ تو میں نے اس آدمی کو کہا تھا، میں نے کہا تم یہ مان گئے تھے؟ کہتا صاحب میں بالکل مان گیا تھا اور میں تیار تھا، اتفاقاً میں پکڑا گیا، نہیں تو میں willingly جا کے خودکش کرتا تھا۔ جی ہاں، حافظ سعید، مسعود اظہر، سید صلاح الدین جیسے آتنکوادی سرگنا کچھ اسی طرح سے پاکستان کے لڑکوں کو جہاد کے لیے اکساتے ہیں، انہیں سیوسائیڈ بامبر بنانے کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ حافظ، مسعود، صلاح الدین جنت اور حوروں کی کالپنک کہانیاں لڑکوں کے من میں ایسے بٹھاتے ہیں کہ یہ جہادی جب تک زندہ رہتے ہیں انہیں جنت اور حوریں ہی دکھتی ہیں۔ ہندو دھرم میں مانتا ہے کہ مرنے کے بعد کرموں کے حساب سے انسان سورگ یا نرک میں جاتا ہے، اگر اچھے کام کیے ہیں تو سورگ ملے گا، برے ہیں تو نرک نصیب ہوگا۔ وہیں سورگ اور نرک اسلام میں جنت اور جہنم کہے جاتے ہیں، اور مسلم مولوی اور مولانا پاکستانی فوج اور آتنکیوں کے اشارے پر اسی جنت کو اپنی دکان چلانے کے لیے بیچ رہے ہیں۔ لڑکوں کو پھسلا کر جہاد کے لیے بھڑکایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جہاد کے راستے میں جان جائے گی تو جنت میں 72 حوریں نصیب ہوں گی۔ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی کیا صرف اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ نہیں، آپ اسے کریں گے، مزے لیں گے، یہاں سے کہیں زیادہ وہاں حاصل ہوگی۔ اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی آئے گی۔ خوش ہو جاؤ، اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ قرآن ایک کالپنک دنیا اور اس کی کالپنک کردار بھر ہے حور۔ بچپن سے جن پریوں اور افسراؤں کی کہانیاں سن سن کر بڑے ہوئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے حور۔ ہندو دھرم میں جسے اپسرا کہتے ہیں، اسلام میں وہ حوریں کہلاتی ہیں، لیکن آج تک نہ تو کسی نے اپسرا کو دیکھا اور نہ حور کو، بس قصے کہانیوں میں جنت اور حور ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کسی کے حور ملنے کا لالچ دینے بھر سے کوئی کیسے بندوق اٹھا لیتا ہے، سینکڑوں لوگوں کی جان لے لیتا ہے۔ تم اس دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ، اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو سکے، بس بقیہ تیاری کس کے لیے کرو؟ اس جنت کو حاصل کرنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی، خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی حور کی ہوگی، اور ہر بیوی، جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی حور، ہر بیوی پر 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے۔
पाकिस्तान के वजीरिस्तान में साल 2013 में आतंकी अड्डे का खुलासा हुआ तो मौके पर पहुंचे न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने क्या देखा, आप खुद सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। आखिर आतंकवाद और हूरों का ये खेल कितना घिनौना और झूठा है। यहाँ पे एक आर्जी तौर पे एक जन्नत का मंजर यहाँ पे बनाया गया है, जैसा कि इन कमरों से वाज़ेह हो रहा है कि खुदकुश हमला आवरों को तरबियत के दौरान इन कमरों में तरबियत दी जाती थी और तरबियत के दौरान उनको ये मनाजिर दिखा के एक जन्नत का एक मंजर पेश किया जाता था। यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे उनके जो खुदकुश हमला आवर थे उनके नाम वगैरह लिखे गए हैं और ये बताया गया है कि खुदकुश हमला आवरों के खून से ये नाम तमाम लिखे गए हैं और उनको तरबियत दी जाती थी और उनको मजीद मोटिवेट इस पर किया जाता था। जैसा कि हम इन मनाजिर में देख रहे हैं कि यहाँ पे इन मनाजिर जो यहाँ पे तस्वीरकशी की गई है उसमें दूध की नहरों का मंजर भी बताया गया है और ये जब तरबियत के दौरान उनको ये बताया जाता था कि जन्नत में दूध की नहरें होंगी और इस तरह कुछ हूरे ख़वातीन के कुछ खाके ऐसे बनाए गए हैं कि जिनको हूर के तौर पर पेश किया गया है। खुदकुश हमला आवरों को यहाँ पे तरबियत के दौरान ये बताया जाता था कि वो जैसे कि जन्नत में मौजूद हैं और जन्नत की हूरें उनकी मुंतज़िर हैं। आखिर हूर तक जाने का रास्ता लाशों के ढेर पर चलने के बाद ही क्यों मिलता है? क्या वाकई जिहाद का झंडा बुलंद करने वाले आतंकवादियों का जन्नत में 72 हसीनाएं इंतजार कर रही हैं? शहादत के बाद फरिश्ते हमें सीधे जन्नत ले जाएंगे। जन्नत कयामत में हमें शान से उठाया जाएगा और जन्नत में खूबसूरत हूरें होंगी, दूध और शहद की नदियां होंगी जहां हमें इनसे नहलाया जाएगा। और ये सबसे उनके हक में आता है जो दीन के लिए जान गंवाता है। अपनी 72 लोगों को हमारा सलाम बोलना, कहना दावत पर इंतजार करें, आज बहुत सारे मेहमान भेजने वाला। मुंबई अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी इन फिल्मों के डायलॉग और ये किरदार तो फिल्मी हैं, लेकिन अब असली आतंकवादी के मुंह से भी सुन लीजिए जन्नत और उसकी हूर की हकीकत। मेरा ये पैगाम जिस वक्त आप हजरात तक पहुंचेगा उस वक्त मैं आपकी जन्नतों के मजे लूट रहा हूँगा इंशाअल्लाह। तो क्या 26/11 का मुंबई अटैक हूरों ने करवाया? क्या उरी और पुलवामा में आतंकी हमला हूरों ने करवाया? क्या अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, रूस और अफगानिस्तान में आतंक के खेल के पीछे हूरे हैं? सवाल बचकाना लगता है, लेकिन सच यही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और सीरिया जैसे इस्लामिक देशों में बाकायदा जिहाद की यूनिवर्सिटी चल रही है। धर्म के ठेकेदार बने बैठे मौलाना मौलवी नौजवानों को जन्नत और हूर का सपना दिखाकर उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये बात खुद पकड़े जाने पर नाकाम हो जाने वाले लड़कों और उनके परिवार वालों ने बताई। जन्नत रबना वصف لنا الجنة في سورة الرحمن، سورة اسمها الرحمن، ووصفها بعمقها. بعدين أنا بكون زي ما سمعتوا في 72 حور في الجنة، أنا بكون أجمل الحور، بكون من الحور يحق لي الزواج. في سورة الرحمن الآية تقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. إن شاء الله يا رب، ربنا يكرمنا يكرم ونقابلكم في الجنة. شلالات، حدائق، مية مقطرة، فواكه مما تشتهي الأنفس، حور العين يطوف عليهم بولدان مخلدون. يعني إيش بدك أحسن من هيك؟ يعني إحنا اليوم قاعدين طينة ورمل
وشوارع وعجة وزنقة عالم، فيعني حياتك رح تنقلب رأسا على عقب يعني. हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहाँ हासिल होगी। पाकिस्तान में जिहाद के नाम पर आतंकवाद को मजबूर करने के लिए बाकायदा छोटी छोटी फिल्में बनाकर सर्कुलेट किया जाता है। पाखंडी मुस्लिम धर्मगुरु अपनी तकरीरों में खुलेआम जन्नत की हूर का लालच देते हैं। रेडियो स्टेशन के जरिए वो जिहादी मानसिकता फैलाने की कोशिश करता है, जलसा और दावत देता है, मदरसों में बुलाकर वो हदीस और कुरान के नाम पर उनको गुमराह कर रहा है। वो बताता है कि अगर भारत से लड़ते हुए उनकी मौत होती है तो वो सीधा जन्नत में जाएंगे और 72 हूरें उनका इंतजार कर रही है। तो भारत का दुश्मन नंबर 1 और मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद लोगों को इस्लाम के नाम पर कुर्बानी के बकरों की तरह तैयार करने की तालीम देता है। अब इस दुनिया की क़यादत इस्लाम संभालेगा। मुहम्मदी वर्ल्ड आर्डर दुनिया के अंदर कायम होगा। ये है असल मसला। इस मसले ने तड़पा रखा है पूरे मगरिब को। अपने कदमों पर खड़े होना, मुआशी तौर पर मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा करना और इसके लिए पूरी कौम को कुर्बानी देने के लिए तैयार करना, मैं समझता हूं क़यादत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है। और हाफिज की इसी आवाज पर पाकिस्तान के आतंकी संगठन कम उम्र के लड़कों के दिलो दिमाग में जन्नत और हूर का जहर घोलकर हिंदुस्तान में तबाही मचाने की साजिश रचते हैं। तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। बस बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, हर तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। कश्मीर में लगातार आतंकी वारदातें होती रहती हैं। उसके पीछे होता है किसी आतंकवादी संगठन का नाम। इन आतंकी संगठनों का आतंक फैलाने का एजेंडा क्या है, ये जानने से पहले जरा उन लोगों के बारे में बताना ज्यादा जरूरी है जो ऐसे संगठनों में शामिल होते हैं, आतंकवादी हमलों को अंजाम देते हैं, वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और तालिबान जैसे आतंकी संगठन बाकायदा कैंप लगाते हैं, भर्तियां होती हैं, भर्ती किए गए लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो ये खतरनाक लोग दुनिया को दहलाने निकल पड़ते हैं। इसी ट्रेनिंग का अहम हिस्सा होती है भर्ती किए गए कम उम्र के लड़कों की ब्रेन वॉशिंग। इसमें उन्हें जन्नत और हूरों के ख्वाब दिखाए जाते हैं। आतंकी संगठन तालिबानी बच्चों को कैसे सुसाइड बॉम्बर बना रहा है, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, इस पर पाकिस्तान की पत्रकार और फिल्मकार शर्मीन आबैद जिनाव ने काफी रिसर्च की और डॉक्यूमेंट्री बनाई। शर्मीन उन बच्चों से मिली जिन्हें तालिबान ने ट्रेनिंग दी थी। हमें ये नहीं पता कि इस समय के लड़के जिंदा भी हैं या नहीं, लेकिन शर्मीन को जो कुछ इन लड़कों ने बताया वो देखिए। आप समझते हैं कि आप कभी फिदाई हमला करना चाहेंगे? बहुत शौक है, लेकिन अगर घर से इजाज़त मिल गई वालिदैन का तो इंशाल्लाह करूँगा। फिदाई हमले से आपको क्या अजर मिलेगा? फिदाई हमले से तो यह अजर मिलेगा कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि तूने क्यों ऐसा किया है। खून वगैरह नज़र आता होगा या आग वगैरह नज़र आता होगा, तो मैं वहाँ यही जवाब दूंगा कि ए अल्लाह तेरे रज़ा के लिए ही जान दी है और कुफ़ार मुशरिकीन से लड़े ही जान दी। तो वहाँ पर फिर मेरे इरादे को देखा जाएगा। अगर मेरा इरादा यही हो कि मैं इन बेगैरत ज़लीलों को ख़त्म करने के लिए या इस्लाम की नाम बुलंद करने के लिए क्या हो, तो फिर अल्लाह ताला मुझे जन्नत ही में जगह दे देगा। तालिबान के आतंकी बच्चों को पुराने मारे गए आतंकियों के किस्से सुनाकर उन्हें हीरो बताता है
और मारे गए आतंकियों के साथ जन्नत में कितना अच्छा बर्ताव होता है, ये झूठी कहानी सुनाकर फिदायीन बनने पर राजी करता है। Older members of the Taliban, the fighters, start talking to the younger boys about the glories of martyrdom. They talk to them about how when they die, they will be received up with lakes of honey and milk, how there will be 72 virgins waiting for them in paradise, how there will be unlimited food, and how this glory is going to propel them to become heroes in their neighborhood. जन्नत और हूर आतंकवादियों के दिमाग में किस कदर बसा हुआ है, ये पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरिफ जमान बताते हैं। आरिफ ने जिहाद और आतंकवाद पर कई किताबें लिखी हैं और उनका दावा है कि उन्होंने 600 से ज्यादा आतंकवादियों पर रिसर्च की है और पाया है कि सभी आतंकवादियों को जन्नत में 72 हूरों से मिलने का लालच दिया गया था। शादी तो आपने नहीं की? नहीं, शादी की कोई ख्वाहिश नहीं। 72 हूरें इंतजार कर रही हैं, आज की एक को लेके क्या करना है? रात में हाथों मर जाते हैं, उनकी भी हूरें इंतजार कर रही हैं, ये जो मासूम बच्चों का नाम, उनके साथ वैसा ही मामला होगा जैसा उनका दिल चल रहा होगा। अगर वो इस हुकूमत का साथ देते हैं या हुकूमत की अच्छाई के लिए सोचते हैं तो उनसे वैसा ही हिसाब होगा। हूर सिर्फ ख्वाबी दुनिया का कैरेक्टर है, लेकिन मौलवी मौलाना हूर का हुनर ऐसे पेश करते हैं जैसे वो जन्नत में उनसे मिलकर आए हो। सामने से जब पर्दा हटेगा तो एक और कायनात नजर आएगी और उस पर एक लड़की यूं बैठी होगी ऐसे टेक लगा, थोड़ा तख्ती छोटा नहीं दमदम में खावा ऐसे करके तो ऐसे करके बैठी होगी। तो वो जब उस पर नजर पड़ेगी ना जन्नत की लड़की पर, तो उसकी आंखें ऐसे फटी रह जाएंगी, ऐसे ही रह जाएंगे और दिखते यार 40 साल बस ऐसे ही बैठा रहेगा। जिसने जन्नत के काले काले दोज़ख के काले फरिश्ते देखे हों के मरेगा नहीं तो और क्या आखिर वो बोलेगी अमाल कफीना मिन रग़बतिन, मेरे आका आप मेरे पास नहीं आएंगे। फिर उसको होश आएगा, अरे बीबी तो कौन है, मैंने तेरी बेगम और कौन। जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो महिलाओं का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में मुस्लिम धर्म गुरु क्या तर्क देते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। औरत को उसका शौहर मिलेगा, उसके शौहर को बीवियां मिल सकती है ज़ायद इब्ने आदम से, और उसके अलावा हूरें मिलेंगी। लेकिन औरत को क्या मिलेगा? औरत को उसका शौहर, और अगर उसका शौहर जहन्नुमी हुआ तो उसे दूसरे इंसान के निकाह में जो उसके मर्तबे का उसके लेवल का होगा नेकी में वो उसे दिया जाएगा। लेकिन औरतों के लिए हूर के तस्करे कुरान और हदीस में नहीं आए। हूरों के नाम पर लोगों को बरगलाने के लिए कुरान और हदीस का हवाला दिया जाता है, लेकिन क्या वाकई कुरान में 72 हूरों का जिक्र है भी या नहीं? इस्लाम के जानकार इस पर क्या कहते हैं, वो भी सुनना बेहद जरूरी है। नौजवानों को बहकाया जा रहा है और ये कहा जाता है कि उनको जन्नत में इतने हूरें मिलेंगी अगर वो किसी को कत्ल कर दें। ये तमाम बातें बिल्कुल भी बेबुनियाद हैं। जन्नत किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी ये सिर्फ जाहिर की बात है, अल्लाह को मालूम है। और इसके लिए जो मजहब इस्लाम ने हमें तालीम दी वो ये है कि अगर तुम जन्नत में जगह चाहते हो तो उसके लिए सबसे सीधा रास्ता ये है कि सही तौर पर जो अल्लाह की इबादत की जाए और सही तौर पर इंसानियत की खिदमत की जाए और जो इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं उन पर पूरी तरीके से अमल किया जाए। इसीलिए मजहब इस्लाम में ये बात कही गई कि सच्चा इंसान वो है जिसकी की जात से किसी भी दूसरे इंसान को कोई तकलीफ ना पहुंचे। इस्लाम जो है उसका के माने जो है उसका जो अर्थ ही है वो सलामती और शांति है। वो हिंसा के की इजाजत नहीं देता है और इसलिए आप ये समझ लीजिए कि वो लोग जो आज दाइश के नाम पे या बोको हराम के नाम पे या किसी और नाम पर हिंसा को फैला रहे हैं वो बुनियादी तौर पे दुनिया के दुश्मन बाद में है, इस्लाम के दुश्मन पहले हैं। हूरों को लेकर पाकिस्तान के बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर जावेद अहमद कामिदी ने क्या कहा, जरा उसको भी सुनना बेहद जरूरी है। कुछ चीजें जो है वो जुबान के लिहाज से बड़ी मुश्किलात पैदा कर देती है। अब लोगों का ख्याल ये हो गया है कि हूर कोई खास मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने हूर का नाम दिया है। तो पहले तो ये गलतफहमी दूर कर ले, हूर किसी खास मखलूक का नाम नहीं है, हूर एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है गोरियां, आहू चश्म
गोरियां, ये अरबी जुबान में औरत की तारीफ के तौर पर लफ्ज बोला जाता है। यानी इस्लाम के जानकार ये तो मानते हैं कि कुरान और हदीस में हूरों का जिक्र है, लेकिन ये नहीं मानते कि वाकई आतंकवाद के रास्ते पर चलने वालों को ही इन हूरों के दर्शन होंगे। शायद इसलिए मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने हूरों को लेकर जो शेर कहा था वो ये कि उम्मीदें हूर ने सब कुछ सिखा रखा है वाइस को, ये हजरत देखने में सीधे साधे भोले भाले लगते हैं। जन्नत की हूरों के नाम पर नौजवान आतंकवाद का दामन थाम लेते हैं, बावजूद इसके कि जन्नत और हूर की कोई सच्चाई नहीं है। और अगर हूरों की इतनी ही चाहत है तो दुनिया में अच्छे काम करो, अपने अंदर के शैतान को मारो, तो भी आपको जन्नत में हूरें आसानी से मिल सकती हैं। लेकिन 72 साल से पाकिस्तान अपने बच्चों को हूरें बेच रहा है। किस लिए? सिर्फ हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए। अभी वक्त है, होश में आए पाकिस्तान, अपने बच्चों को आतंक की आग में न झोंके, निकलो जन्नत और हूरों की दुनिया से बाहर, नफरत की आग में अपने मुल्क को तबाह मत करो।